Hello student, welcome to SGI online classes. Student, today we are going to start unit 3rd, which is basic components of electricity from chapter 8. So start with battery as a collection of cells. Battery क्या है? एक cells का collection है, okay? Connected in series. So battery is a small source of electricity. Battery क्या है? Battery is a small source of electricity. Battery is a small source of electricity, okay, where electrical potential is produced due to chemical reaction. Every chemical reaction has its limit of producing electric potential difference between two electrodes, which is anode and cathode. एनोड एंड कैथोड क्या है? इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है. फॉर अचीविंग डिजायर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल्स, मल्टीपल नंबर ऑफ सेल्स are to be connected in series. So we can say battery is a collection. Battery is a collection of several cells. बैटरी क्या है? बैटरी इज अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर सेल्स, और यू कैन से सेवरल सेल्स, मतलब कई सारे सेल्स का जो कई सारे सेल्स जो होते हैं वो एक साथ जब हम लोग कलेक्ट करते हैं, एक साथ कंबाइन करते हैं उसको, तो क्या होता है? बैटरी. ओके, फॉर एग्जांपल निकल कैडमियम सेल नॉर्मली डेवलप्स अबाउट 1.2 वोल्ट. मतलब निकल कैडमियम जो सेल होता है वो जो वोल्टेज जो डेवलप करता है 1.2 वोल्ट्स, ठीक है, पर सेल. वाइल लेड एसिड सेल डेवलप्स अबाउट 2 वोल्ट पर सेल. सो अ 12 volt battery will have total 6 of lead acid cells connected in series. Means student, cell can be connected in series, in parallel and as well as a combination of both series and parallel. मतलब cells को आप series में भी connect कर सकते हो, parallel में भी connect कर सकते हो, और series और parallel दोनों में connect कर सकते हो. Okay? Student, cells can be connected in series, in parallel and as well as a combination of both series and parallel. मतलब cells को आप series में भी connect कर सकते हो, parallel में भी connect कर सकते हो, and both series and parallel दोनों में connect कर सकते हो. Okay? Student, in series connection of cells, series में कैसे करते हैं? In series connection ऑफ सेल. सीरीज में कैसे कनेक्शन किया जाता है सेल्स का? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड विथ the negative terminal of succeeding cell. सीरीज में कैसे कनेक्शन होता है? सीरीज कनेक्शन ऑफ सेल्स, positive terminal of one cell is connected with the negative terminal of succeeding cell. Student, in this connection, overall EMF of the battery is algebraic sum. Okay,
of all individual cells are connected in series. Means total EMF जो होता है किसके इक्वल होता है? algebraic sum of all individual cells. किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में. If E is the overall EMF of the battery connected by 3 cells. Okay, suppose 3 cells लिए गए and सबका individual EMF क्या है? E1, E2 and E3. Are the EMF of individual cells E equal to क्या हो जाएगा? E1 plus E2 plus E3. मतलब जितने सेल आपने कनेक्ट किए हैं तो टोटल EMF जो होगा, अगर उनको सीरीज में कनेक्ट करते हो तो टोटल EMF जो होगा E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3. जितने भी सेल, सपोज आपने 2 सेल्स कनेक्ट किए हैं तो टोटल या ओवरऑल EMF क्या होगा? E इक्वल टू E1 प्लस E2. 3 सेल्स कनेक्ट किए हैं तो E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3. ओके. But the overall discharge current of the battery does not exceed the discharge current of individual cells. मतलब जो total current होगी इसमें, ठीक है, वो does not exceed the discharge current of individual cells. Okay, but EMF क्या होता है? इस total जितने भी cells हैं उनका sum हो जाएगा algebraic sum. Students, similarly R1, R2 and R3 are the internal resistance. ये क्या है? Internal resistance. Internal resistance को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल लेटर के R से. ठीक है. Internal resistance of individual cells, then the internal resistance of the battery. बैटरी में क्या होते हैं? कई सारे सेल्स कनेक्ट होते हैं. ठीक है, कई सारे सेल्स कनेक्ट हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बैटरी. So internal resistance of the battery equal to the sum of the internal resistance of individual cells. That is R equal to, इसको बैटरी का जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसको किससे डिनोट किया गया है? कैपिटल R से. मीन्स इंटरनल रेजिस्टेंस of the battery equal to R1 plus R2 plus R3. Okay. Now student, electric fuse. Electric fuse क्या होता है? The electric fuse is a device which is used to limit the current in an electric circuit. ठीक है, ये क्या करता है? Which is used to limit the current is an electric circuit and it is the weakest point in an electric circuit. Electric circuit का क्या है? बहुत ही weakest point है, बहुत ही वीकेस्ट पॉइंट है विच मेल्ट्स एंड ब्रेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट. ये क्या होता है? इसमें जो इलेक्ट्रिक वायर होता है जो वो क्या होता है? मेल्ट्स हो जाता है अगर बहुत हाई करंट होती है एंड ब्रेक हो जाएगा. किस कंडीशन में ब्रेक एंड मेल्ट होगा? व्हेन द सर्किट गेट्स ओवरलोडेड, ओके, ड्यू टू लार्ज विथड्रॉ ऑफ करंट. इस कंडीशन में भी जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है, जो इसके वायर से वो क्या होंगे? मेल्ट हो जाएंगे. और किस कंडीशन में होगा? ड्यू टू शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशन में एंड ड्यू टू फ्लक्चुएशंस ऑफ करंट इन पावर सप्लाई ऑफ सिस्टम. तो इस कंडीशन में, ये तीनों कंडीशन की अगर अप्लाई होती है तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? उसके जो वायर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेल्ट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, जिसकी वजह से करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा. ओके. एंड इसकी कंस्ट्रक्शन कैसा होता है? इट कंसिस्ट ऑफ अ सॉलिड पोर्सिलेन ग्रिप. एक सॉलिड पोर्सिलेन ग्रिप होता है. पोर्सिलेन ग्रिप मीन्स चीनी मिट्टी का बना हुआ होता है, इसका जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. ऑन द साइड्स ऑफ विच आर प्रोवाइडेड 2 रेक्टेंगुलर क्लैंप्स ऑफ कॉपर. ये आप लोग के बेटा बुक में फिगर नंबर है, फिगर नंबर 8.15. आप उससे देख के फिगर कैसे बना हुआ है, ठीक है, क्या क्या उसकी कंस्ट्रक्शन है वो उससे देख लेना. दीज क्लैंप्स टाइटली फिट इन द टर्मिनल T1 एंड T2. T1 एंड T2 से इसके जो टर्मिनल से वो क्या कर दिए जाते हैं? फिक्स कर दिए जाते हैं क्लैंप्स. ठीक है. इन बिटवीन द कॉपर क्लैंप्स इज फिक्स्ड अ फ्यूज वायर. इसके T1 T2 के बीच में क्या होता है? हम लोग फ्यूज वायर को फिक्स करते हैं. विच इज एन एलॉय ऑफ 60% टिन एंड 40% लेड. मतलब जो वायर होता है वो क्या होता है? एलॉय होता है. किसका? टिन का एंड लेड का. ओके. ये होता है 60% इसमें और ये होता है 40%. दोनों को मतलब टिन एंड लेड का एलॉय होता है जो फ्यूज वायर होता है.
डिफरेंट फ्यूज वायर्स कैन हैव डिफरेंट थिकनेस। आप डिफरेंट फ्यूज वायर्स लेते हो तो उसकी थिकनेस भी कैसी हो सकती है, डिफरेंट हो सकती। मोर द थिकनेस ऑफ द वायर मोर द इलेक्ट्रिक लोड इट कैन विथस्टैंड, ओके। एंड व्हेन द ग्रिप इज इंसर्टेड, जैसे ही आप उसकी ग्रिप को इंसर्ट करते हैं इन द केसिंग, द टर्मिनल एंड T1 एंड T2 गेट कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू फ्यूज वायर। When some overloading or voltage fluctuations takes place, the fuse wire melts। जैसे ही ओवरलोडिंग हो जाएगी आपकी करंट की, ठीक है, या फ्लक्चुएट होते हैं करंट, वोल्टेज या कुछ भी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा उस कंडीशन में, द फ्यूज वायर मेल्ट्स। दिस इन टर्न ब्रेक्स द सर्किट, द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड हैज करंट स्टॉप, ओके, फ्लोइंग द सर्किट। जैसे ये आपका फ्यूज वायर जैसे ही मेल्ट होता है या उस जैसे ही मेल्ट होगा वो ब्रेक हो जाएगा, उस कंडीशन में करंट क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी सर्किट में, ठीक है। सो इन अ वे फ्यूज हेल्प इज डिसकनेक्टेड एंड ओवरलोडेड और फॉल्ट इलेक्ट्रिक सर्किट एंड हैज प्रिवेंटेड इलेक्ट्रिक फायर। इलेक्ट्रिक फायर को क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम लोग सर्किट में यूज करते हैं। नाउ स्टूडेंट स्टार्ट विद मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं, एमसीबी। एमसीबी किस लिए यूज की जाती है, इस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, एमसीबी ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। ये क्यों यूज की जाती है, द प्रॉब्लम इन फ्यूजेस इज दैट द फ्यूज वायर मेल्ट्स and has needs replacement whenever overloading takes place। जैसे ये फ्यूज वायर जो होता है, जैसे ये सर्किट या करंट ओवरलोड हो जाती है तो फ्यूज वायर क्या होता है, मेल्ट्स हो जाता है। इसकी वजह से हम लोग क्या होते हैं, जैसे ही फ्यूज वायर मेल्ट्स होता है उसको रिप्लेस करना पड़ता है, ओके। द प्रॉब्लम इज ओवरकम इन मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इट इज प्लेस्ड इन सीरीज इन अ गिवन सर्किट। हम लोग क्या करते हैं, जो भी सर्किट है उसमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को किस में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में, ठीक है, इन लाइव वायर and switched on whenever circuit gets overloaded, the component in it sense it, okay, and put the miniature circuit breaker in off position। जैसे ही करंट ओवरलोडेड होती है तो ये क्या होता है, अपने आप से ही ऑफ हो जाता है, ठीक। तो इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। सो स्टूडेंट, टुडेज क्लास इज ओवर, थैंक यू।